Hello students, welcome back to the session. So today we are doing All the World Stage part 2. Okay, so this is a poem which was written by William Shakespeare, and the part 1 is something which I've already uploaded, but then this is part 2. So let us revise what does part 2 has to say. But before that, let us फटाक से रिवाइज कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था. इट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, राइट. हियर ही शोज 7 ages of man, that every person has to go through 7 stages in his life, right? Remember something. So let us see the first stage, which was the first stage that he says, William Shakespeare, that every person has to come, like every person has to face this stage called infant, like a small baby, right? The first stage was small baby, that he cries, mewling and puking. Mewling matlab kya tha? What did we see? Mewling was crying slowly, and puking is that vomiting jo chote bacche karte hai, right? Doodh wali. So that was the first stage, that a child always, first stage of man was infancy, right? That he always cries in the babyhood and throws the milk and vomits in the hands of nurse. Nurse यहाँ पे मैंने बोला था, it could be the real nurse or the mother, like someone who takes care of the baby, right? That was the first stage. Now the second stage was the childhood stage, that now that baby has now grown through a small child, like a 10 to 12 wala period, 5 to 12 wala period. So that was the childhood, that he is and satchel whining. What was whining? That now a little bit of high pitch cry, that now he has grown up but still he keeps crying. Satchel is school bag, so now he is ready to go to school, and he always keeps complaining about everything, right? He used to carry his school bag, the face used to shine brightly, and he was fresh in the morning, but the time when he used to get to know that he has to go to school, then his speed used to get decreased, that उसको ज़रा भी मज़ा नहीं आता था स्कूल जाने में. जब भी स्कूल की बात होती थी, he used to feel uninterested. याद आया? That was the second part, the childhood part. First was the infancy, एकदम small baby. फिर second part is when he tries going to school, right? Now the third part was lover, कि after school, you know, children feels that okay, we have become a lover वैसा. तो इसमें क्या देखा था weaver, that he used to sigh मतलब क्या? letting out breathe with sadness, के दुख के कारण जो हम श्वास छोड़ते हैं उसको बोलते हैं sighing. And then he used to, what did we learn over here? That he used to eyebrows of her mistress, right? कि जो उनकी lover है, जिनसे for which he had fallen, he used to keep praising her eyebrows, and he always used to listen to sad poems. So that was all about lover. That was the third stage. फिर वहाँ पे हमने देखा था that वही एज में क्या होता है, lover हो जाता है. He used to listen to sad songs, and then listen to sad songs, and what else? Used to praise the eyebrows of a mistress. मैंने बोला था, a lady, like the unmarried lady. And then he used to take strange oath promises. Strange oath like unusual promises, कि वो period ही वैसा होता है when bubble reputation is something which you feel कि it is important, right? Looking for bubble reputation is like कि temporary fame, किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी तो हमको अच्छा लगता था, तो वो वाला पीरियड होता है. और वो थोड़ी सी तारीफ सुनने के लिए, just to listen to that few praises, that guy or that person could actually face dangerous situation. Cannon's mouth हम लोग ने देखा था, cannon's mouth is facing dangerous situation, कि just to listen to that temporary what do we say, praise, झूठी मतलब थोड़े टाइम की तारीफ सुनने के लिए वो कैनन्स माउथ मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करने तक भी रेडी था. He was fierce like animal. I said कि वो अभी the next period was youth. 3 पीरियड हमने देखे, द चाइल्ड,
the school children, the laborer, and now was the youth. The youth वाला मैंने बोला था जो हमारे पोएम में it has written soldier, जो soldier लिखा है वही youth वाला पीरियड है. वहाँ पे क्या था that the person is fierce like animal, के now he is strong. वैसे अब उसको चीज़ों से डर नहीं लगता, but yeah he does get jealous of honors of others. Now that is the period when you say a teen period, a teenager period. So things do affect you, like छोटी सी चीज़ हो गई and it affects you badly, you start thinking about it badly. So that is the youth, the soldier period. के you cannot see someone getting honored, के थोड़ा सा you will feel jealous ऐसे. तो jealous of honors of other, के किसी और को honor मिल रहा है तो आपको jealous feel होगा वैसा. quick tempered and also fights, quick tempered and also fights मतलब as I said you जवानी का अपन बोलते जवानी का खून होता है. So you are a young blood, right? तो you feel कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो you start fighting. a short tempered person वैसा समझा. looks for temporary reputation, वही bubble reputation is temporary phase, and he is even ready to face great dangerous situation for this reputation. In short, this is the period where students or where person doesn't worry for the life, they don't worry about life. समझा. till that हम लोग ने देखा था soldier वाला period. now let us come further. कितने स्टेज हो गए? 3-4 स्टेज हो गए, राइट. फर्स्ट वॉज चाइल्ड, फिर लवर, फिर स्कूल चिल्ड्रन बेबी, फिर लवरर, और अब ये यूथ. हमने 4 फेज देखे, राइट. नाउ लेट अस कम टू रेस्ट ऑफ देम. नाउ व्हाट आगे में द पोएट इज सेइंग, लेट अस सी. फाइन. and then the justice in fair round belly with a good cap on line, with eyes served and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his path. ठीक है. and then the justice in fair round belly with good cap and line, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. Now here when we say and then the justice, is not that कि अब वो कोर्ट या जज बन गए. no, here when we say and then the justice, so what does justice over here means कि now that person is a wise person, a loyal person. वैसे कि अब कैसे हो गया, this is the period जो middle age हम बोलते थे ना, स्टार्टिंग में हमने मैथ द फॉलोइंग में देखा था कि what does middle age means, के पीरियड आफ्टर 30 to 50, जो 30 और 50 वाला पीरियड होता है ना, उसको हम बोलते हैं मिडिल एज. सो दिस इज़ ये जो अभी हमने पढ़ा एंड देन द जस्टिस. तो दिस पॉइंट, दिस स्टैंजा डिस्क्राइब्स इज अबाउट मिडिल एज. तो उसमें कैसे होता है ना, एज अ यूथ, यू वर इन यूथ पोजिशन में यू एक्सपीरियंस सो मैनी थिंग्स ना, दैट नाउ टिल मिडिल एज यू आर अ एक्सपीरियंस पर्सन, कि आपको हर चीज़ का कोई ना कोई छोटा छोटा एक्सपीरियंस होता ही है, बिकॉज आपने उतना काम किया था ना व्हेन यू वर यंग. बराबर. 30 to 50 का पीरियड इज़ मिडिल एज. तो आपका जो एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक, कि आपको पता है ठीक है ये चीज़ में अगर मैं कुछ ऐसे करूँगा तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ मुझे फेस करनी पड़ेगी, और आई हैव टू फेस ऑल सच डिफ़िकल्टीज. सो नाउ यू आर अ एक्सपीरियंस पर्सन, you know how things could work वैसा. so that is why it is called as an experienced person. समझा यहाँ तक? okay, so now what does over here justice means, कि now that person is an experienced person, कि now they know कि what happens in life, what situations you have to face वैसा. and then the justice in fair round belly with good cap and line. ठीक है, with good cap and line over here means that a middle aged person वैसे, with a fair round belly is as you said fair round belly, के नाउ अभी उनको belly आ गया, मतलब कैसे उनका पेट आ गया वैसे. now fair round belly is because of excess eating, कि वो पीरियड कैसे हो जाता है when you are young, so you are worried about your body looks and stuff, we work on them, but as you start working harder आपको टाइम कम मिलते जाता है, and then जो फोकस होता है ना बॉडी पे वो कम हो जाता है, बिकॉज आप काम में ही इतने बिजी होते हो वैसा. so in fair round belly with a good cap and line, with good cap and line is which explain us that now the person has come to a middle age. and in fair round belly is
कि एक्सेस ऑफ ईटिंग विदाउट एक्सेस ऑफ ईटिंग, केयरलेस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, वैसे कि एक्सेस फैट जो जमा हो जाता है बिकॉज ऑफ केयरलेस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, कि वो पीरियड ही वैसे हो जाते हैं दैट यू आर सो मच इन टू वर्क एंड सो मच इन टू अर्निंग दैट यू फॉरगेट टू मेंटेन योर सेल्फ, फॉरगेट टू कीप ध्यान रखना बॉडी का, कि आप भूल ही जाते हो बॉडी का ध्यान रखना वैसा. सो इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप इन लाइन विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट. ठीक है, नाउ आई सीवियर इज आईज आर सीरियस in the sense that now a person is actually really focused into work and so much busy into work, वैसा कि अब वो सीरियसली काम करता रहता है वैसा. तो इसीलिए आईज आर सीरियस, कि अब वो पीरियड नहीं रहा ना कि कब हम मस्ती कर सकते, नाउ यू हैव टू वर्क वैसा. तो आईज आर सीवियर, सीवियर इज सीरियस एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, के ओके बियर्ड आ जाती है, नाउ अ पर्सन इज सीरियस वैसा. फुल ऑफ वाइस सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस. ठीक है, फुल ऑफ वाइस सॉस. सॉस मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेइंग्स, कि अब वो जो भी बोलता है ना वो वाइज होता है, वो सच होता है वैसे, कि नाउ सच होता है मतलब अब कितना उसने एक्सपीरियंस कर लिया रहता है. एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब क्या, करंट एग्जाम्पल्स. मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब जो अभी के करंट एग्जाम्पल्स है ना वो. एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, मतलब क्या होता है देखो, आई विल एक्सप्लेन. एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप इन लाइन. ठीक है, एंड देन द जस्टिस मतलब कि नाउ द पर्सन हैज एंटर्ड टू द मिडल एज एंड नाउ ही इज अ जस्टिस, मतलब ही इज अ वाइज पर्सन. वाई, बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस सो मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ, कि उसका एक्सपीरियंस अभी बोलता है. हम बोलते हैं ना कि अनुभवाचे बोल आहेत, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस थिंग्स वैसा. तो नाउ ही हैज़ ग्रोन, मतलब फेयर राउंड बेली हैज़ बीन अपीयर्ड ऑन हिज बॉडी वैसा, मतलब कैसे कि ही इज सो मच इन टू वर्क ना दैट यू फॉरगेट टू वर्किंग फॉर योर सेल्फ और मेंटेनिंग योर सेल्फ वैसा. सो एंड देन द जस्टिस दैट नाउ द पर्सन इज अ वाइज पर्सन फुल ऑफ एक्सपीरियंस विद गुड कैप इन लाइन, मतलब इन टू अ middle age, yeah, middle age वैसा. with eyes severe and beard of formal cut, के now that person is serious towards his work, तो eyes are severe and beard of formal cut, के अब तो beard भी आ जाती है वो एज में वैसा. फुल ऑफ वाइस सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, कि अब क्या होता है अगर उसको किसी को एक्सप्लेन करना है या किसी को सजेशंस देना है तो वो उनको वाइस सजेशंस देगा. सेज इज सेइंग, कि वो उनको वाइस सजेशंस देगा, मतलब क्या, कि उनको सच बोलेगा, क्या मतलब आगे आपको सच में क्या यूज़फुल होगा ना वैसा वो बोलेगा. बिकॉज नाउ ही इज़ अ एक्सपीरियंस पर्सन ना, तो उनको पता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो शायद आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकता है, क्योंकि मैंने शायद ऐसे किया था और मुझे वैसा प्रॉब्लम फेस हुआ था. सो ही डजंट वांट कि जो उनको प्रॉब्लम फेस हुआ था वो आपको भी वैसा ही सेम प्रॉब्लम फेस हो. इसके लिए नाउ ही वुड से वाइज सेइंग्स, के वो हमेशा जो सच है जो आपके भले के लिए होगा, जो दैट वुड बी समथिंग विच वुड बी प्रॉफिटेबल टू यू, वही वो बोलेंगे वैसा. फुल ऑफ वाइज सेइंग्स एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, एंड पहले के एग्जाम्पल्स नहीं, आपको करंट एग्जाम्पल्स के आपको वो बताएंगे. कि अभी समझो आपको कोई उनको चीज़ ही एक्सप्लेन करनी है, दैट वाइज पर्सन, दैट मिडल एज पर्सन हैज़ टू एक्सप्लेन यू समथिंग, has to explain you about certain topic. So he would say something which is actually true about that topic, which would actually help you. And also he would give you modern instances, कि वो आपको current situations के साथ उसको experience कैसे करना है उसका example connect करके देंगे वैसा. And so he plays his part, कि मतलब वही कि ये था 5th part, कि whether person is a wise person, he is a experienced person, he gets belly because of excess amount of eating, but that is also formed because he could not actually focus on his work, focus on his self, because he is so much into his work. And now he forms beard, like beards are being formed, and eyes are severe, and he would always give wise suggestions to someone, and he would always say wise things वैसा. And he would give modern instances, he would give modern examples so that you understand a particular topic. So this was all about a 5th part where a person is a wise person. समझा, justice person, that is the middle age person. ठीक है, this was the 5th part. Now let us come to the 6th stage. The 6th stage is
The sixth age shifts into the lean and sleepered pantaloon with spectacles on nose and pouches on side. His youthful horse well saved a world till while. ठीक है. For his shrink shrank and his big manly voice, turning against towards stylish treble pipes and whistle in his sounds. ठीक है. अब क्या है, मिडिल एज से पर्सन इज टर्निंग ओल्ड. द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून. लीन मतलब बच्चे लोग यहाँ पे क्या होता है, लीन इज वीक हो जाना. हम लीन बोलते हैं ना, वीक. तो नाउ द पर्सन इज बिकमिंग वीक. एंड स्लीपर्ड पैंटलून. स्लीपर्ड पैंटलून मतलब क्या होता है, पैंटालून इज एन ओल्ड पर्सन. वैसा ओल्ड फूल बोलते हैं अपन. तो फूल मतलब वो फूल नहीं होता है यहाँ पे, इट इज़ अ पर्सन. ओके, तो ही लुक्स लाइक अ ओल्ड फूल इज़ वॉट स्लीपर्ड पैंटलून मीन्स. के हमने इसके पहले वाला एज देखा मिडिल एज के, जहाँ पे ही वॉज वाइज, ही वॉज गिविंग करंट एग्जाम्पल टू पीपल, ही वॉज वर्किंग सो हार्ड. उसके पेट उसका आ गया था, लाइक द बेली वॉज फॉर्म्ड, वो सब था, राइट. ही वॉज अ हेल्दी पर्सन, अ वर्किंग पर्सन, अ पर्सन हु यूज टू गिव वाइज advices to other. But now that same person is now turning old. तो मिडिल एज से हम कहाँ पे आ गए, ओल्ड एज में आ गए, राइट. तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून. लीन मतलब अभी वो पर्सन, मिडिल एज वाला पर्सन इज नाउ टर्निंग वीक. And sleepered pantaloon. Pantaloon is what I said you is an old fool, is like a old person. So now that person is looking like an old fool. Shifts into the lean and sleepered pantaloon with spectacles on nose and pouches on side. ठीक है. इन द रेड स्लीपर्स मतलब यहाँ पे उसके पहले देखा एंड स्लीपर्ड पैंटालून. अब स्लीपर्ड मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चे लोग, स्लीपर्स. तो पहले कैसे, व्हेन ही वाज इन मिडिल एज ही यूज्ड टू गो टू वर्क, राइट. तो शूज़ पहन के जाते थे वो. पर अब सिंस ही हैज़ टर्न इनटू एन ओल्ड एज पर्सन, सो नाउ दैट शूज़ आर बीइंग चेंज्ड इनटू स्लीपर्स. हम आप लोग सब लोग ने देखा रहेगा, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कैसी, वो चप्पल कोल्हापुरी टाइप्स चप्पल रहती है ना, ओल्ड फैशन, वो पहनते हैं बिकॉज वो ओल्ड एज में उनको वो कंफर्टेबल लगती है वैसे. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नाउ दैट मिडिल एज पर्सन इज टर्न इनटू ओल्ड एज पर्सन. ही लुक्स लाइक अ ओल्ड अंकल एंड देन ही वेयर्स हिज स्लीपर्स. वैसा समझा ये एक लाइन का मतलब. with spectacles on nose and pouches on side. Okay, now he's become so thin, weak. लीन मतलब मैंने क्या बोला था, थीन. अब ओल्ड हो जाते हैं ना तो जनरली दे बिकम थीन, दे बिकम वीक एंड लीन. लीन मतलब वही वीक. नाउ स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज. स्पेक्टेकल्स एवरीवन नोज, चश्मा. बट अब चश्मा क्यों आ जाता है, बिकॉज जो आई साइट होती है वो भी वीक हो जाती है. द आई साइट ऑल्सो बिकम्स वीक. सो दैट आर ऑल द साइंस विच शोज दैट नाउ द पर्सन इज गेटिंग ओल्ड. दैट विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, that he starts wearing spectacles because the eyesight also becomes weak, and pouches on side. Now what do you mean by pouches on side? पहले जब he was a middle aged person, when he used to work ना, तो उस टाइम पे क्या होता था, आपने देखा होगा जो पापा रहते हैं वो लोग शर्ट पहन के जाते हैं ऑफिस को, राइट. But now as an old person, what does usually grandparents wear is something like a t-shirt sort of thing जिसमें साइड में पॉकेट्स होता है. सो वाई पॉकेट्स, पाउच ऑन साइड इज लाइक पॉकेट्स ऑन साइड व्हाट दे वेयर ना, शर्ट उनमें पॉकेट्स होते हैं. सो वाई आर दे पॉकेट्स यूज टू कीप नेसेसरी थिंग्स. उनमें पता है उनका चश्मा होगा या तो उनकी एक पेन होगी वैसा, या तो फिर कोई लोग जिनको दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स, तो उनके पेरेंट्स जो उनके घर वाले होते हैं ना वो ऐसे एड्रेस का चिट्ठी भी रखते कि उनका नाम और एड्रेस के अगर कहीं पे वो भूल जाए तो वो भी रहता है. एक छोटू सा फ़ोन दे कैरी विद देमसेल्फ. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नेसेसरी थिंग्स टू देम. सो देयरफॉर व्हेन अ पर्सन बिकम ओल्ड ही स्टार्ट्स वेयरिंग, what do we say, spectacles. That now the eyesight has become weak. And also pouches on side, के side में pouches आ जाती है, so that he can keep necessary things in that pouches. What necessary things? It might be a phone, it might be a pen, it might be spectacles also, वैसा.
a few money as well, थोड़े से पैसे भी रख सकते वैसा. With spectacles and nose and pouches on side, his youthful horse well saved a world wide. ठीक है, his youthful horse. ठीक है, now यहाँ पे I'll say you, he has saved मतलब यूजफुल हॉर्स मतलब क्या होता है, पुरानी सॉक्स जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हॉर्स इज सॉक्स. ठीक है, और यूथफुल मतलब जो उन्होंने अपने यंग एज में जो सॉक्स सेव करके मतलब जो बचा के रखे थे. देखो, हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड वाइड. ठीक है, अ वर्ल्ड टू वाइड. नाउ हिज यूथफुल हॉर्स मतलब जो उनके यंग एज में या तो उनका जो मिडिल एज का हॉर्स मतलब जो सॉक्स उन्होंने बचा के रखा था, वेल सेव्ड इज जो उन्होंने बचा के रखा था. अ वर्ल्ड टू वाइड मतलब क्या कि अब मैं बताती हूँ अ वर्ल्ड टू वाइड का मीनिंग क्या होता है. मतलब जो उन्होंने अपने मिडिल एज के सॉक्स बचा के रखे थे वो उस टाइम पे उनको फिट होते थे. वाई? बिकॉज ही वॉज हेल्दी, राइट. तो उसी माप का था उनका सॉक्स, तो वो उस टाइम पे उनको हेल्दी होता था. बट अभी सिंस वो ओल्ड हो गए हैं उनको वो लूज़ होने लगा. लूज़ का मीनिंग ही देखो यहाँ पे, अ वर्ल्ड टू वाइड. वाइड मतलब क्या, पौड़ा, मतलब लूज़ होना. कि वही सॉक्स अभी उनको लूज़ होने लगा. उन्हीं के माप का जो उनका मिडिल एज का सॉक्स था वही अभी उनको ओल्ड एज में लूज़ होने लगा है. अ वर्ल्ड टू वाइड मतलब इट फील्स सो वाइड. ऐसा, वाई डू यू फील, क्यों ऐसा होता रहेगा, बिकॉज हमने पहले ही देखा कि ये एज कौन सी है, ओल्ड एज. एंड ही हैज़ बिकम लीन मतलब वो वीक हो गए हैं. तो जैसा उनका मिडिल एज में बॉडी था हेल्दी हट्टा कट्टा, वैसा अभी ओल्ड एज में उनका बॉडी नहीं है. अभी ओल्ड एज में वो पतले हो जाते हैं. इसके लिए जो सॉक्स उनको मिडिल एज में फिट होता था वही उनको अभी ओल्ड एज में लूज़ होने लगा है. समझा ये लाइन का मीनिंग. हिज यूथफुल हॉर्स मतलब यूथफुल इज़ यंग एज, मिडिल एज, और हॉर्स इज सॉक्स वेल सेव्ड कि जो उन्होंने सॉक्स जो अपनी मिडिल एज की सॉक्स उन्होंने संभाल के रखी थी वही अभी उनको लूज़ होने लगी है, वाइड होने लगी है. अ वर्ल्ड टू वाइड. समझा. फॉर हिज श्रंक शैंक्स एंड हिज बैग and his big manly voice turning to a childish treble pipes and whistle in his sounds. ठीक है, for his shrunk shrank. For his shrunk shrank is, देखो यहाँ पे ये उल्टे मतलब लाइन्स कैसे है, it completes in the next line वैसा. So his youthful horse well saved a world too wide for his shrunk shrank. कि जो उन्होंने यूथफुल मिडल एज में जो सॉक्स संभाल के रखी थी, वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, वही वो पतली हो गई है. क्यों? बिकॉज फॉर हिज श्रंक श्रैंक. ठीक है, श्रंक शैंक मतलब क्या बेटा लोग, श्रंक श्रैंक, श्रंक शैंक मतलब शैंक इज़ लेग. ठीक है, और श्रंक मतलब श्रंक बोलते ना मतलब क्या, नैरो हो जाना, कम हो जाना वैसे. ठीक है, तो वही बता रहे कि अ वर्ल्ड टू वाइड मतलब वही सॉक्स उनके लिए पतली हो गई है. क्यों? बिकॉज हिज श्रंक शैंक. बिकॉज शैंक इज़ अ पार्ट ऑफ मतलब लेग बोल सकते हैं वैसा. तो शैंक इज़ लेग कि उनका जो लेग है वो नैरो हो गया है. श्रंक मतलब पतला हो गया है वैसा. तो नैरो हो गया, पतला हो गया उनका पाँव वैसे. इसके लिए वो सॉक्स है वो उनको लूज़ हो रहा है. समझा यहाँ तक. हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक. सिंपल. सो लास्टली व्हाट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से अस कि जो उन्होंने सॉक्स सेव करके रखे थे वो अब उनको लूज़ हो रहे. क्यों लूज़ हो रहे? बिकॉज वो अब पतले हो गए हैं. समझा. And his big manly voice turned again towards childish treble pipes and whistles in his sound. And his big manly voice. अब देखो ये आपने फ़र्क सबने नोटिस किया रहेगा. जो मिडिल एज अपने जो पापा का आवाज़ होता है, पप्पा लोग का जो आवाज़ होता है मिडिल एज में, वो मैनली मतलब मैन एकदम स्ट्रॉन्ग वॉइस होता है, राइट. बट अपने पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स का आपने आवाज़ देखा रहेगा वो कैसे थोड़ा कमज़ोर हो जाता, थोड़ा वीक हो जाता है. इट साउंड्स अ लिटिल बिट ऑफ स्लो वैसा. तो नाउ वही बोल रहे कि जो उनका जो मिडिल एज में जो बिग मैनली वॉइस था, जो एकदम हार्डकोर वॉइस था, वो अभी हैज़ टर्न इनटू अ चाइल्डिश ट्रेबल pipes and whistles in his sounds.
मतलब क्या कि अभी वही साउंड जो बिग मैन वॉइस था हैज़ नाउ टर्न इनटू अ स्मॉल वॉइस ऑफ अ चाइल्ड, कि उनका आवाज़ कैसे एकदम वीक हो जाता है, एकदम बच्चों जैसा हो जाता है वैसे. एंड वेन एवर दे ट्राई टू स्पीक इट सीम्स एज इफ दे आर प्लेइंग, मतलब जैसे हम पाइप के साथ प्ले करते हैं या जब विसल बजाते तो कैसे वो थोड़ा बराबर आवाज़ नहीं आता, थोड़ा ऐसा इरिटेटिंग वॉइस आता है, वैसा पेरेंट्स लोग, ओल्ड पेरेंट्स का वॉइस हो गया है. मतलब वही बेसिकली क्या बताना चाह रहे कि थोड़ा उनका कट होने लगता है वॉइस. व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग विद पाइप्स ना योर वॉइस starts breaking and it sometimes sounds irritating वैसा. तो वही बोल रहे कि अब वो आवाज़ एकदम बच्चों जैसा हो गया है and it starts breaking. तो जो manly voice था middle age में has now turned into a small children का voice in this old age period. समझा? So this was the 6th period. 5th हमने देखा that a person is a wise person, gives wise suggestions, current examples, उनका belly formed हो जाता है. All this was the 5th stage. 6th stage was when from a person turns from a middle age he turns into a old person वैसे कि now he starts wearing spectacles. Why? Because the eyesight decreases. Now he has pouches on side. Why? To keep necessary things. Now the socks which he has saved from years has now turned loose for him because his leg has become thin. समझा? दिस वॉज द 6th पीरियड. अब 7th पीरियड क्या हो सकता है? तो देखो 6th पीरियड हमने देखा वॉज एन ओल्ड एज पीरियड, राइट? बट 7th पीरियड इज समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली ओल्ड. लाइक हमने 6th एज में तो देखा कि वो यहाँ वहाँ घूम सकते थे, स्पेक्टैकल्स लेके या टी शर्ट पहन के. ही यूज टू रोम, वो बोल भी पाते थे थोड़ा चाइल्डिश वॉइस में. बट नाउ लेट अस सी व्हाट इज 7th stage, the last stage. And last scene of all that ends this stage, last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Fine. तो अब देखो कितना डीपली एक्सप्लेन किया है ये चीज़ें. लास्ट सीन ऑफ ऑल, कि अब ये सब जो हमने स्टार्टिंग से देखा, बच्चा, फिर स्कूल चिल्ड्रन, फिर कॉलेज, फिर लवरर, फिर यूथ, फिर मिडिल एज पर्सन, फिर जस्टिस वाले पर्सन, फिर ओल्ड पर्सन, एंड लास्टली ये वाले पर्सन, क्या? ओल्ड एज पर्सन. अब इनमें देखो, इनमें क्या बताया है? that ends this strange eventful history. Eventful history is exciting events. Eventful मतलब क्या होता है? exciting events, के जो अब तक उन्होंने अपने लाइफ में जो सारे exciting events which he did, now he could not do that. That ends this strange eventful things हिस्ट्री. दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में, पास्ट में जो सारे उन्होंने इवेंट्स किए, जो एक्साइटिंग इवेंट्स किए, नाउ दैट एंड्स मतलब क्या? नाउ ही कुडंट डू दैट. वाई? बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ हिज एज, कि अगर उनको मन भी हो वो सारी चीज़ें करने को, देन ऑल्सो ही कांट. वाई? बिकॉज नाउ ही हैज़ टर्न इनटू अ ओल्ड पर्सन. तो दैट is the meaning of this line, that ends this strange eventful history. Eventful is, as I said you all, exciting events, के जो उन्होंने अपने youth period में, अपने young age में जो सारे exciting events किए थे, now he couldn't do that. Is second childishness. Now what does second childishness over here means? कि हमने पहले देखा ऊपर वाले फेज में कि जब वो ओल्ड होते, बट व्हेन ही इज एबल टू वॉक एंड ऑल, हिज वॉइस बिकम्स लाइक अ चाइल्ड लाइक. हमने बोला ना कि एकदम बच्चों जैसी आवाज़ हो जाती है. तो यहाँ पे वही है कि इस सेकेंड चाइल्डिशनेस, तो वो फेज़ में तो सिर्फ आवाज़ बच्चों वाली हो गई रहती है, बट ये जो लास्ट फेज़ होता है ना, उसमें दे कम्प्लीटली टर्न इनटू अ चाइल्ड, मतलब कम्प्लीटली टर्न इनटू अ चिल्ड्रन, वैसा छोटे बच्चे जैसे वो हो जाते हैं कि दे बिकम स्टबन, दे बिकम ज़िद्दी, वैसा कि नहीं अभी चाहिए तो चाहिए, वैसे दे विल स्टार्ट
मतलब वही कि इरिटेट करना स्टार्ट करना, इरिटेट बट ऐसा ज़िद करना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं चाहिए तो चाहिए, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना कि नहीं हमको चाहिए वैसा। बट उस टाइम पे देखो हमको समझ के लेना चाहिए, वी शुड नॉट गेट इरिटेटेड बाय देम, राइट? बिकॉज आई गिव यू अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, जो मैंने ये पढ़ा था कहीं पे, आई गिव यू दैट एग्जाम्पल. His second childishness. So I was talking that the old person completely turns into a baby, कि वो एकदम ज़िद्दी हो जाते कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ना, तो मुझे ये चीज़ चाहिए ही वैसा. तो what I was saying, I was about to give you guys an example, right? So there's this a small example which I heard somewhere on internet, कि एक क्यूट सी स्टोरी है, छोटी सी है, बट इससे आपको क्या सीखना है वो यू अंडरस्टैंड वैसा. फाइन. सो देयर इज़ दिस पप्पा एंड अ चाइल्ड. ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है और एक पप्पा होता है. ठीक है, तो वो छोटा बच्चा है ना बर्ड को देख के है ना बार बार डैड से पूछता रहता है कि पापा ये क्या है क्या है. तो उसके डैड बोलते हैं कि बेबी एक ये बर्ड है, ये बर्ड है. बट वो बर्ड उसको इतना फैसिनेट करता है ना वो चाइल्ड को, कि वो बार बार पूछते ही रहता है कि पापा वो क्या है वो क्या है वैसे. तो उसने वो बेबी ने ना, he must have asked like for 15 to 20 times to his parent, to his father, कि papa what is that, what is that, what is that. And all of the time the father replied that baby it's a bird, baby it's a bird. Fine. This was the incident. ठीक है, this was the incident जो वो बेबी के बचपन का था. ठीक है, that every like he must have asked for 15 to 20 times that what is that, and it was a bird, but the father always replied कि it was a bird, it was a bird. ठीक है, ओके. सो नाउ टाइम पास्ट एंड क्या हो गया कि जो उसके पापा थे ना, नाउ ही वॉज बिकमिंग ओल्ड वैसा. ठीक है, सो नाउ द फादर स्टार्टेड बिकमिंग ओल्ड. सो जैसे ही स्टार्टेड बिकमिंग ओल्ड, एज आई सेड यू, द ओल्ड पर्सन टर्न्स इनटू अ चाइल्ड, कि एकदम बच्चे बन जाते हैं. तो एक बार क्या हो गया कि वो है ना वैसे ही कोई चीज़ होगी सामने, तो वो बार बार पूछने लगे कि अभी वो किसको पूछने लगे, अपने बेटे को. ठीक है, जो उनका बेटा था ना उनको पूछने लगे कि बेटा ये क्या है, ये क्या है ऐसे. तो 2-3 बार मतलब समझो उन्होंने कुछ डिश होगी खाने की, तो उन्होंने पूछा होगा पापा ने कि बेटा ये कौन सी डिश है वैसा. तो उसने बोला होगा कि पापा ये समझो पनीर का सब्जी है वैसा. तो बार बार उसके डैड ने पूछा होगा क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है. तो उसने मतलब 2 बार आंसर दिया कि पनीर का सब्जी है वैसे. एंड थर्ड टाइम ही वाज लाइक अरे डैड कितने बार बोलूँ, आपको बोला ना ये पनीर का सब्जी है वैसा. तो इससे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. फिर उसकी मॉम आती है, वो बच्चे की मॉम आती है, एंड वो उसको बताती है बच्चे को कि बेटा व्हेन यू वर चाइल्ड एंड व्हेन एक ही बर्ड को देख के आपने 15 से 20 बार पूछा रहेगा कि वो क्या है वो क्या है वो क्या है, आपके पापा ने 15 से 20 बार आपको वो आंसर दिया था कि वो बर्ड है वो बर्ड है वैसा. तो वो उस टाइम पे वो भी इरिटेट हो सकते थे ना, कह रहे क्या है, आपको बोला ना एक बार बर्ड है, आपको समझ में नहीं आता. नहीं, बट उन्होंने क्या किया था, जितने बार बेचारे बच्चे ने पूछा उन्होंने हर बार उसको वो बोला था कि वो बर्ड है वो बर्ड है. वो इरिटेट नहीं हुए थे. क्यों? बिकॉज द फादर वॉज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि मेरा बेटा भी बच्चा है, ही इज़ चाइल्ड. एंड बच्चे लोग ज़िद्दी होते, दे कीप्स ऑन आस्किंग यू थिंग्स. तो जब आपका मतलब मम्मी उसको रियलाइज़ करती है कि उससे क्या मिस्टेक हुई, वैसे कि जब आप छोटे थे तो पापा कभी आपके ऊपर इरिटेट नहीं हुए, उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो बर्ड था. एंड अब जब पापा बुढ़े हो गए हैं, मतलब ही हैज़ टर्न्ड ओल्ड, सो एज आई सेड यू के एज पीपल स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड ना, दे बिकम चाइल्ड, दे स्टार्ट बिकमिंग स्टबन वैसा. सो जैसे पापा ने आपको बार बार पूछा तो आप तो थर्ड बार में ही इरिटेट हो गए वैसा. एंड देन द पर्सन, द बच्चा जो बेटा था, उनको अपनी गलती रियलाइज हुई कि ओके आई शुड हैव अंडरस्टूड के बच्चे जैसे हो गए होते तो मुझे भी अच्छे से समझाना चाहिए था वैसा. The thing you should always understand that as a person grow old na, they start becoming
चाइल्ड ऐसा. एंड देन एट दैट टाइम यू शुडंट गेट इरिटेटेड बाय देम. ओके, बहुत टाइम मतलब यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं दैट दे गेट इरिटेटेड बाय द ग्रैंड पेरेंट्स, बट नेवर गेट इरिटेटेड. अगर उनका काम करने को भी अपन को आया ना तो अच्छे से उनका काम करो. बिकॉज सी दे आर समवन, जिन्होंने, हम बच्चे थे तो उन्होंने हमारा ध्यान अच्छे से रखा था, राइट. तो अब ये हमारा ड्यूटी बनता है कि जब वो ओल्ड हो रहे हैं तो हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. यू माइट गेट इरिटेटेड बाय देयर नेचर, बट समझ के लो ना. अब जब हम बच्चे थे तो उन्होंने भी हमको समझ के लिया, राइट. दे अंडरस्टूड अस, सो नाउ इट इज़ आवर टाइम टू अंडरस्टैंड देम. तो उस टाइम पे यू शुडंट डू के यू शुड गेट इरिटेटेड बाय देम, या उनको आप कुछ बोल दो बिकॉज वो ओल्ड है तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे. नो, यू शुड नेवर डू दैट, बट इंस्टेड यू शुड अंडरस्टैंड देम कि ठीक है अब उनका वो फेज़ है कि वो वापस बच्चे हो गए हैं, तो लेट्स लिव विद देम. वैसा के इन्जॉय करो ना वो भी मोमेंट उनके साथ, ठीक है. तो बहुत सारे देयर मस्ट बी मेनी ऑफ देम हु माइट बी गेटिंग इरिटेटेड विद द ग्रैंड पेरेंट्स, बट please don't. In fact, try to enjoy every phase with them, because now they are at the last stage, and what they expect from someone is love, concern, caring. बस उतना ही वो लोग अपने लास्ट स्टेज में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सिर्फ अपने लोगों से थोड़ा प्यार, थोड़ा अटेंशन चाहिए रहता है. जो बच्चों को, अब जब बच्चा होता है तो बच्चे को भी अपने पेरेंट्स, अपने लव्ड वंस का अटेंशन चाहिए रहता है, राइट. तो वही फेज़ है उनका भी, that old people are growing through the same phase. So उस time पे you need to give them love, you need to give them attention. You might get irritated, ऐसा नहीं है. Even I as a person used to sometimes get irritated, but then realizing कि no, how grandparents are important, उन्होंने भी हमारे लिए बचपन में किया ही था ना, तो अब ये हमारा चांस है उनके लिए करने का. बस remember this one thing and start loving and caring them. Well, they become child, so they become stubborn and they become attention seeker. उनको attention चाहिए रहता है, तो हम उतना तो दे ही सकते. उन्होंने हमें बचपन में दिया था, तो अब हमारा बारी है कि हम उनको attention दे, वैसा. समझा. सो हमने कहाँ तक देखा कि लास्ट स्टेज, राइट, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री. इवेंटफुल इज, आई सेड यू ऑल, एक्साइटिंग, कि जो सारी अभी एक्साइटिंग चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ में की थी, अब ही कुडंट डू दैट. वाई? बिकॉज नाउ ही हैज़ टर्न इनटू ओल्ड पर्सन एंड द बॉडी डजंट सपोर्ट्स. इतना हमने देखा था, राइट. इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, ये भी हमने देखा कि नाउ दैट पर्सन इज सेकेंड चाइल्डिशनेस. मतलब जो उनका सेकेंड क्यों बोला है? बिकॉज ओल्ड पेरेंट्स होते जो, वो बचपन में तो अपने चाइल्ड फेस से चले गए होते, राइट. तो वो एक चाइल्ड फेस, और अभी जब वो लास्ट स्टेज में आते तब वो वापस चाइल्ड बन जाते. इसके लिए बोला है सेकेंड चाइल्डिशनेस. कि फर्स्ट चाइल्डिशनेस तो हम सब एक्सपीरियंस कर लेते हैं हमारे बचपन में, और जो लास्ट फेज होता है उसको सेकेंड चाइल्डिशनेस, के अब वो दूसरे बार बच्चे बन जाते हैं, वैसा. एंड mere oblivion मतलब क्या? फॉरगेटफुलनेस. ऑब्लिवियन मतलब क्या? फॉरगेटफुलनेस. के एज आई सेड यू के थोड़ी चीज़ें भूल भी जाते होगे. मैंने जो आप पॉकेट्स के बारे में मैं बोल रही थी तभी मैंने बताया कि कोई लोगों को भूलने का प्रॉब्लम होता है, वैसा. तो उनके जो घर वाले होते हैं वो एड्रेस और नाम उनके पॉकेट में चिट्ठी रखते हैं, वैसा. एंड mere oblivion मतलब वही कि एज दे स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड दे माइट आई साइट उनकी कम हो जाती है. दे स्टार्ट वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, दे बिकम चाइल्ड, बच्चे बन जाते हैं. एंड दे इवन फॉरगेट थिंग्स. बहुत बार ये चीज़ों से भी आप इरिटेट हो सकते हो कि शायद आपने बोला होगा कि मैंने यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, एंड वो भूल जाएंगे, एंड वो बार बार आपको पूछते रहेंगे कि आपने कहाँ पे चीज़ रखी है, कहाँ पे चीज़ रखी है, एंड आप बोलोगे अरे बोला ना दादी आपको यहाँ पे रखा है, वैसा. तो उससे आपको ये नहीं होना है कि आपको इरिटेट नहीं हो जाना है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ठीक है वो ओल्ड होते जा रहे हैं, बूढ़े हो जाते, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि ठीक है वो जो याद रखने का जो शक्ति होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है, वो वीक हो जाता है. तो दे माइट फॉरगेट थिंग्स ऑल्सो एट टाइम्स. तो उस टाइम पे यू शुड अंडरस्टैंड, वैसा. समझा. एंड मियर ऑब्लिवियन इज दे माइट फॉरगेट थिंग्स, वैसा. sans teeth, sans eyes, sans taste and sans everything.
क्या, सैंस मतलब क्या, विदाउट। तो अब वो क्या हो जाता है कि अभी लास्ट स्टेज में आ गए हैं, बच्चे बन गए हैं, सब चीज़ें भूल रहे हैं, अपने लाइफ में इवेंटफुल जो एक्साइटिंग थिंग्स है वो नहीं कर सकते हैं। सैंस टीथ इज विदाउट टीथ, कि अब एज मतलब कैसे कि जैसे जैसे वो अपने क्लोज लाइफ मतलब एज एन ओल्ड एज में कन्वर्ट हो रहे, लास्ट एंड फेज में आ रहे, तो सैंस टीथ के उनके टीथ चले जाते हैं, वैसे थोड़े थोड़े निकलने लगते हैं। तो विदाउट टीथ, सैंस आइज मतलब विदाउट आइज, तो ऐसा नहीं विदाउट आइज मतलब कंप्लीटली विदाउट आइज, बट लॉस ऑफ आई साइट, कि अभी उनकी जो आई साइट है वो भी कम होती है। सैंस टेस्ट, के टेस्ट भी उतना नहीं रहता है, कि पता है उनको नहीं समझता है कि नमक वाला खा रहे, नमक बिना वाला खा रहे, कि वो उनका टेस्ट चला जाता है वैसे। एंड सैंस एवरीथिंग, एंड लास्ट में सब ही चला जाता है, विदाउट एवरीथिंग। समझा यहाँ तक? सो दिस वॉज द पोएम बाय विलियम शेक्सपियर, जहाँ पे वो 7 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। आज हमने कौन सा स्टेज देखा? पहले हमने देखा जस्टिस वाला, मतलब वाइज पर्सन, मिडल एज पर्सन, वेर ही इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन एंड ही गिव्स वाइज एडवाइजेस टू एवरीवन, करंट एग्जाम्पल्स के साथ, राइट। फिर उसके बाद हमने जो फेस देखा वो था 6th फेस, जिसको हमने बोला था ओल्ड एज फेस, के वहाँ पे क्या था, जो मिडल एज वाला पर्सन है वो अभी ओल्ड फेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिडल एज में जैसे वो शर्ट शूज़ पहनते थे, वही ओल्ड एज में अब टी शर्ट और स्लीपर्स हो गए हैं, कि नाउ ही इज़ हैविंग पॉकेट्स, वाई, टू कीप इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नाउ ही इज़ वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, वाई, बिकॉज आई साइट कम हो गई है वैसे। एंड उनका आवाज़ बच्चों जैसा कन्वर्ट हो जाता है। दैट वाज द 6th पीरियड। एंड 7th पीरियड हम लोग ने देखा, 7th फेस देखा, जो कम्प्लीटली ओल्ड है, मतलब जहाँ पे नाउ ही नो के जो सारे एक्साइटिंग चीज़ें मैंने मेरे लाइफ में की है वो मैं वापस कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। नाउ आपका दे बिकम अ सेकेंड चाइल्ड, के एकदम छोटे बच्चे हो जाते हैं, दे माइट फॉरगेट थिंग्स। एंड लास्ट में धीरे धीरे करके आई साइट, उनका टेस्ट, उनका टीथ सब कम होते जाता है, एंड एवरीथिंग बिकम्स incomplete, everything becomes lost. समझा? तो this was the poem by William Shakespeare. What was the name of the poem? Which poem are we doing? All the World's a Stage, where he says that the life of a person is like a stage, and every players over here are actors, and everyone has their birth and death, कि सब आते हैं लाइफ में, सबका बर्थ होता है, कि जैसे स्टेज पे सबका एंट्री और एग्ज़िट होता है। एंड लोग कैसे, मतलब स्टेज पे क्या होता है, लोग एंटर करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और एग्ज़िट करते हैं, वैसे ही इट इज़ अबाउट आवर लाइफ, दैट वो पर्सन कम्स, टेक्स बर्थ, plays all these 7 roles, and then exists, matlab, and then the death occurs. Okay, so that was it for today's poem. I hope you have understood the message. I hope you have understood the poem. And yeah, that was it for the poem. If you have any doubts, then please write it down, and then we'll complete it into the next chapter. Till then, bye bye and take care.